وزیر نو کہنے پریس کانفرنس کرو، وہ نہیں کرتا. کیا مذاق بنا ایک ریگولیٹر کا سربراہ ہے، وہ اپنی تنخواہ خود ہی بڑھا لیتا ہے پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر، اور خود ہی وصول کر تو لیتے. شہباز شریف صاحب تو صرف نام کے وزیر اعظم ہیں. جون میں فیصلہ کرتے ہو اور جولائی میں ہم کمینوں کو بتاتے ہو کہ یار اعلیٰ افسران کی تنخواہ اور مراعات میں اضافہ کر دو. اور وہ ملینز میں ہے. آلو، پیاز، ٹماٹر وہ 50 روپے فی کلو ایک ہفتے میں بڑھا دیا گیا ہے. اللہ آپ کا کیوں؟ ڈیزل اور تمہارا وزیر اعظم حکم کرتا ہے کہ پریس کانفرنس کرو، لوگوں کے سوال لو، سمجھاؤ. وائی وی آر گوئنگ یومیہ، نہیں کیا. یو ڈونٹ ڈو اٹ. آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں، سوا صاحب نے چلوا دیتے ہیں. کیا بات کر رہے ہو یار؟ اوگرا جو ہے وہ کس کی آرگنائزیشن ہے یار؟ یہ جو 110 روپے ٹیکس اضافی ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ 80 روپے کی لیوی کون لگاتا ہے؟ پھر ایک پورا آپ نے سیلاب کے پورے آپ نے فیس کیا پچھلے سال 25 میں، تو اب تو آپ کی تیاری ہونی چاہیے. بہت زیادہ. نومبر سے شروع کیجئے اور آپ جون تک آئیے. آپ کے پاس 8 مہینے بچتے ہیں، تو 8 مہینے میں کیا آپ نے ان نالوں کو اور دریاؤں کے بندوں کو کیا مضبوط کیا؟ تو وہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکا. اور ہر طرف پانی پانی، نہ صرف رہائشی آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے بلکہ جتنی جو یہاں پہ فصلیں تھیں وہ ساری کی ساری پانی میں ڈوب چکے ہیں. انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کوشش کیا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ چودھری صاحب کی 30 یونین کاؤنسلز پہ قبضہ کیا جائے مخالفین کی طرف سے، پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس باہر پھینکا جائے، ہمارے لوگ چیختے رہیں آر او کے لیے، پولیس کے لیے، اور ان کا نام و نشان نہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں. یہ صرف تب ممکن ہے جب آپ صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے نہیں، امن کو گارنٹی کرنے کے لیے نہیں، دنگلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے. ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. مجھے مجبور نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے. جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر. آپ نے بلاول بھٹو صاحب کو سنا. نصر صاحب آپ نے بھی غور سے سنا. بہت اگریسو نظر آ رہے تھے. ایک تو آزاد کشمیر کے 13 نشستوں پہ جو انتخابات ہوئے تھے، بلاول صاحب نے ان کو مسترد کرتے ہوئے دھاندلی کا الزام لگایا، اور ساتھ ساتھ نون لیگ پر سخت الفاظ میں انہوں نے گفتگو کی. اور یہ جی، اور جن کے بارے میں کہا گیا انہوں نے بھی کچھ فرمایا ہے، وہ بھی سن لیں. نون لیگ نے جی ان کے بھی. بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا. نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا. صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے. سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا. اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی. یہ مریم صاحبہ نے یہ اسپیسیفکلی انہوں نے ان کو بلاول صاحب کے لیے ویڈیو بنایا. نہیں، اسی کے جواب میں پہلے اصل میں صبح جو ہے، یعنی ان کے اس بیان سے قبل بہت سخت ایک تقریر کی جا کے مظفر آباد بلاول بھٹو صاحب، یہ جو ہم نے جس کا شارٹ سنا ہے، ہاں جس میں سے ہم نے یہ شارٹ سنا. اب ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. میں ہاتھ باندھ کے التجا کرتا ہوں، خدا کے لیے میں نے ساری زندگی آپ لوگوں کو کور کرتے گزاری ہے، میری بات پہ اعتبار کیجیے. یہ جو پوری جذباتی تقریر تھی بلاول بھٹو زرداری کی،
तुम्हें पता है कि मैंने बाजार में ऐसे ही दवाइयाँ लेने के बहाने जब जाता हूँ, लोग मिल जाते हैं, सर की हो रहा है ये वो उधर। आपको पता है कि कम से कम 40% लोग ये कह रहे थे सर ये बस फ्रेंडली फायर है। जो बलावल साहब तकरीर की ये फ्रेंडली फायर है। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा सर आपको पता ही है ना, ठीक है हम आपकी मजबूरियां समझते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। तो ये उससे तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। अब देखो इन पॉलिटिक्स ये बात मैं दोहराता रहता हूँ तुम्हारे सामने, हकीकत से ज़्यादा परसेप्शन इम्पोर्टेंट होता है कि यार आपका गुस्सा, अच्छा जबकि मैं थोड़ा सा, मुझे अरसा हो गया बिलावल भुट्टो साहब को यूं मिले हुए, गालिबन 2 साल से ज़्यादा हो गए होंगे मिनिमम, यानी कि वन ऑन वन क्या ग्रुप की सूरत में भी मिले हुए, बट आई नो हिज बॉडी लैंग्वेज, आई नो कि जब ये जेन्युइन गुस्से में है। तो ये जो आपको मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि ये वाक़तन गुस्से में थे। जो तकरीर की आपके नजर में ये जज्बाती ये तकरीर नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली फायर नहीं था। ठीक, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस क्लिप को दोबारा चलवा कर देखें तो उसमें उन्होंने अमाम जामन बांधा हुआ है। हाँ, ये एक अलामत होता है कि आप एक मुश्किल सफर पर रवाना हो रहे हैं। समझ गए हो ना बात को? हाँ ठीक है कि आप एक मुश्किल मिशन पे जा रहे हैं। अच्छा, अब उस मुश्किल मिशन में लफ्ज क्या है? लफ्ज ये है कि हम तो कौमी मुफाद में रियासत के साथ हैं, लेकिन रियासत तो नून लीग के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। हेलो, हाँ, तो रियासत को चॉइस दी जा रही है कि आप हमें चुने, तो इसलिए नहीं, हमें चुने या ना चुने, मकसद ये कि भाई मतलब इतना फेवर न करें कि वो लगे कि नून लीग कोई बना संवार के पेश किया जाए। सीधी सादी बात है कि यू आर वेरी प्रोटेक्टिंग, यू आर पेट्रनाइजिंग, यू आर प्रमोटिंग नवाज लीग। ये अभी इस पे जो मरियम साहिबा का जवाब है कि जीबीए जीतो तो ठीक, तो कश्मीर जीतो तो हार जाओ तो कहते होते। भाई ये फार्मूला आपने वहां क्यों नहीं फिट किया? चलो वहां जीबी में ये जीत गए, नून लीग को फेयर एनवायरनमेंट मिला होगा, पीटीआई को तो ना मिला ना। तो जब वोट की बात आनी थी, हकूक की बात आनी, तो फिर जीबी में भी करते, वहां आप जीत गए। इस हवाले से अगर आपका ओपिनियन रखूं तो फिर मरियम साहिबा का गिला भी ठीक है। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना, तो फिर ये फ्रेंडली फायर तो ना रहा उन्होंने भी। अब आखिरी बात जो है, आप जो, क्योंकि अब ये ऑन गोइंग यानी प्रोसेस चल पड़ा, राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यही थीम कर रहे हैं कि साहब आपकी परफॉर्मेंस ही जो है वो इतनी बुरी है कि पीपल आर नॉट इंस्पायर्ड। अच्छा, अब अगर तुम्हारे इस आर्गूमेंट को ले लें तो अगर ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस है तो फिर जीबी में क्यों? हाँ, अच्छा, अगर इतनी ही बुरी परफॉर्मेंस है तो फिर बलूचिस्तान में इनका क्यों? हाँ, तो सरफराज भुगटी साहब, अब ये अलग बात है कि इस बारे में बहस हो सकती है कि क्या सरफराज भुगटी साहब पीपल्स पार्टी के हैं या नहीं हैं? ओहो, अक्सर ऐसे बात कहने में क्या हर्ज है? ये कैसे बहस हो नहीं सकती? वो है ही चले, पार्टी। नहीं कोई बात नहीं, वो अभी कौन सी जमात से शुरू हुए थे? ओरिजिनल उनकी कौन सी जमात थी? नहीं, हम नहीं, उस पर नहीं, फिर नहीं, बहस अच्छा, कहीं और चली जाएगी। तो यार अच्छा, ये अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये कब लज वक्त है नुसरत जावेद साहब? ये एक डिवीजन के इंतखाब में अभी तो पूरा इलेक्शन पड़ा है मेरे भाई। नहीं भाई, ये पूरा इलेक्शन नहीं पड़ा असल में। यार थोड़ा सा खुदा का वास्ता है, हिसाब किताब कर लेने में बरादरे मिल्लत कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा, वो कैसे? मैं नहीं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की कुल नशिस्तें कितनी हैं? 50 से ज्यादा होनी चाहिए। 53 ना तो अल्लाह भला करे तो 13 पे हुआ। आगे तो सुन लेना, उनमें से कितनी नशिस्तों पे बराह रास्त इंतखाब होते हैं? वो मेरे प्यारे हैं 33। वो सिर्फ देते हैं 33। ठीक है।
बाकी जो 53 बनती हैं वो खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें, महाजरीन के महाजरीन की लिए 12, ठीक है। और उसके बाद अगरचे महाजरीन की सीटों के लिए इलेक्शन होने हैं अभी जो हाँ ठीक दूसरा है, लेकिन फेज। वो एक मुख्तसर और डिफरेंट वोट है। बहरहाल लेकिन वो ये कि वो एज सच, बाकी तो वो इनका वो गालिबन मुतनासिब नुमाइंदगी से हो जाएंगी ना। अब मेरे प्यारे भाई 33 जो सीटें हैं उसमें से 13 पे तो हो जिन गया। बराह रास्त उनमें से 13 पे हो गया। उनमें से 9 सीटें ले गई मुस्लिम लीग, 4 ले गई पीपल्स पार्टी। अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत जज्बाती, बहुत जोशीली तकरीर के बाद मुजफ्फराबाद की 8 सीटें हैं। 8 तो 8 की 8 तो नहीं जीत पाएंगे, मैं कहता हूँ, लेकिन 8 ही जीत जाएंगे। मुजफ्फराबाद वाला जो पोर्शन है, मतलब 3 जो इन्होंने फेज बनाया ना, एक मुजफ्फराबाद डिवीजन की बात कर रहे यार, हैं। मैं तो टोटल सीटों की बात कर, मुजफ्फराबाद डिवीजन में आई थिंक 9 है सर, चेक कीजिएगा। चलो 9 हो गए। 9 9 में से आपने 8 ले ली, तो 8 और 4 12 हो 12 गए। हो गई। इवेंचुअली जो हाउस बनना है वो सारा कुछ कर करा के अभी तो 12 में से 33, तो 12 दूना 24, तो फिर भी कम ही होंगी ना। क्योंकि वो जो महाजरीन के लिए मुख्तस नशिस्तें हैं 12, वो तो अपना भाई पंजाब वालों ने तय करनी है ना ज्यादातर। अगर ज्यादातर उसमें नहीं होगी। पेशावर के वोट भी होने हैं, हाँ ठीक गुलाब भी है, होने हैं। मेजोरिटी 80% पंजाब में तय करना है। सवाल ये उठता था कि आपने बिलावल साहब जितनी सारी तकरीर फरमाई है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ही वॉज जेन्युइनली एंग्री। ही सेड कि मैं फलां का बेटा हूँ, मेरी वालिदा ने क्या किया, मेरे मामू कौन थे। नहीं, मैं गुस्से अब की आप- वजह मैं- क्या शिकस्त है, धांधली है? मेरा अपना ख्याल है जिस चीज़ ने इनको एक, हर चीज़ को भड़काने के लिए आपको एक सॉलिड ग्राउंड चाहिए होती है ना कोई। मैं भी दयानतदारी से बात करता हूँ, उसने मुझे भी चौंका दिया है। मैं तुम्हें एक बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ। देखो मीरपुर के, मैं तो अरसा हुआ, मैं तो अब फील्ड पे जाता वाता नहीं हूँ। तुम्हें याद है हम जब कल लाइव हमारे दोस्त एहतशाम अच्छा हमें हमारे थे, रिपोर्टर, हाँ उस वक्त तक की इत्तला, जिस वक्त वो हमारे साथ लाइव थे, तो एहतशाम साहब की खबर ये थी कि बैरिस्टर सुल्तान साहब जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनके फर्जंद जो हैं वो हार रहे हैं मुस्लिम लीग के कैंडिडेट के मुकाबले में। और आपने कहा ये बड़ा अजीब सा। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा यार कितना, तो उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं जी अभी तक का तो यही है। और मैंने तुम्हें ये कहा, मैंने कहा यार आम तौर पर इन इलाकों में ये रिवायत होती है कि ताज़ा अगर कोई फौत हुआ हो तो उसका जो वारिस है उसको वोट दिया जाता है। तो हर हल्के की एक कल्चरल एक पहचान होती है, ठीक है, सकाफत होती है, वो आपको जहन में रखनी चाहिए। हमारे यहाँ 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत सारी ऐसी मिथ्स जो हैं वो टूट गई थी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में बरादरी आज भी बहुत बड़ा हाँ फैक्टर है बिल्कुल, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो उस तरह ब्रेक नहीं हुई है जैसे होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। इसमें जो बहुत एक आपको निगाह रखने वाली सीट थी वो ये कि वहाँ के एक बड़े मशहूर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं चौधरी यासीन, हाँ बहुत इनके वफादार आदमी हैं और बड़े मुतहर्रक आदमी हैं। सही है। अब लतीफ़ा ये है कि ये वहाँ से मेरे प्यारे अजीज 2 सीटों से खड़े होते हैं। एक सीट जो है जिसको कोटली 3 कहा जाता है, LA-10 कोटली 3, ये समझो कि कोटली तकरीबन शहर की सीट है। ठीक है, उस शहर की सीट से मौसूफ जो हैं वो 12,431 वोट लेते हैं। ओके, ठीक है, और इनके मुकाबले पे मुस्लिम लीग के उम्मीदवार 9,245 वोट लेते हैं, तो ये जीत गए। अच्छा, मीरपुर शहर में वोटिंग का टर्नआउट कम रहा है। बहुत आप एग्जैजरेट कर ले तो 20 से 25% रहा है हाँ? मीरपुर शहर में। अच्छा, सिर्फ 20 से 25? सर बहुत एग्जैजरेट कर ले शहर में।
मैं दोबारा कह रहा हूँ शहर, लेकिन देखें लेकिन इर्द गिर्द के जो नवाही गांव हैं, हाँ, ठीक है, कस्बात हैं, ठीक है, वहां पर जाहिर है वो जात बरादरी, हाँ, ये लोग वो, निकले, टोल टमक्का, वो इट वर्कड वहां पर। अब लतीफा ये है कि कोटली शहर जाकर चौधरी यासीन 12,431 वोट लेकर जीत जाते हैं। 3-3,500 की लीड से जीत रहे हैं। लेकिन ये साहब जहां पैदा हुए, जहां बढ़े, जहां उनकी बरादरी है, जो सब कुछ है, वहां उनको वहां से उनको शिकस्त हुई। वहां इनको जनाब अली वोट मिल जी, ये हार जाते हैं और इनको जो वोट मिलता है वो अल्लाह तुम्हारा भला करे 30,320 और इनके मुकाबले में जीतते हैं नून लीग के मोहम्मद रियासत खान और मोहम्मद रियासत खान के वोट हैं 35,168 और गालिबन कल जो 13 सीटों पे इलेक्शन हुए हैं उनमें ये जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने गालिबन सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से वो बार बार चल रही हैं कि किसी घर में ठप्पे पे ठप्पा या वो हाँ, प्रिजाइडिंग ठीक है, अफसर हाँ, में हाँ। और वही बात रिपीटेडली अपनी तकरीर में वो जो तुमने मोन्टाज दिखाया हाँ, है उसको भी कर रहे हैं। उस मोन्टाज में भी जो है वो ये कहते रहे कि 30 पोलिंग स्टेशन, हाँ, हाँ। इनको कहते हैं वो अपना वो आपका बूथ को जो है वो बूथ कैप्चर कर लिया गया और वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर को भी वो किया गया। ये उनका अच्छा, उनका थोड़ा सा एक इनको सबूत भी यूं मिल गया कि अभी इलेक्शन कमीशन के और बाकी अफसरों ने कुछ लोगों को मुअत्तल किया है बिकॉज हाँ हाँ हुआ वो किया। ठीक है, तो मेरा अपना ख्याल है जो सबसे ज्यादा तकलीफ जिसने पहुंचाई है और जिसकी वजह से वो एक अपना नैरेटिव बनाने में हाँ, उन्हें थोड़ी सी कामयाबी हो रही है पीपल्स पार्टी को, वो ये चौधरी यासीन का। उसमें के साथ एक और भी बात है जो बिलावल साहब ने की है। वो ये कह रहे हैं सॉरी कि ये जो इलेक्शन को आपने मरहलावार किया है, ये सीधा सीधा रास्ता है धांधली यार का। मरहला वार पे तो ये बदनसीब चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी एक कदावर रहनुमा है, मैं बेचारा 2% का रिपोर्टर, जिस दिन ये फैसला हुआ मैंने क्या कहा था, क्या कहा था? अगर क्लिप है तो सुनवाओ। सुनवाएं जी। है मुझे जो मसला सबसे ज्यादा तंग कर रहा है वो ये कर रहा है कि अब मरहला वार हो रहे हैं। ऑलरेडी हम अभी 45-47 की बकवास से नहीं निकले। अर्ज ये है कि हमारे यहाँ ये फर्ज करना शुरू हो गए हैं लोग कि जी बस ये रस्म होती है इंतखाबात की, इंतखाबात रस्म होती है। कि एक रस्म है, आप वोट शोट दे आए, लेकिन ये पहले फैसला हो चुका होता है कि हुकूमत आपके बार किसको देनी है। लोगों के जहन में ये तासुर है या नहीं है? बिल्कुल है, लोगों का एतबार उठ गया है वोट से और बैलेट बॉक्स सही से। है। हाँ, अगर 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात हो इलेक्शंस हो जाते गए हैं और उसी दिन शाम में इंतखाबात आ गए, उसमें पता चला कि जी फला जमात को अक्सरियत मिल गई, हाँ, तो पहला मैसेज जाएगा कि यार एंड जताना पैगाम चूके जाएगा, तो इसलिए दूसरा बंदा ये कहेगा मैं अपना वोट क्यों जाया करूं कि जिस शख्स ने वोट डालना था जो कि नजर बजायर हारी हुई जमात है, हाँ, हाँ। तो वो कहेगा यार वो तो फैसला हो चुका है, फलां ने जीतना है। तो बेहतर होता कि ये ऐलान करने से पहले जो जमातें स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं उनको बिठाया जाता। ये तो आपने जिस दिन शायद नोटिफिकेशन बाबा जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ मैंने उसी दिन दुहाई मचाना शुरू कर दी और देखो कल इलेक्शन हुआ है, आज शोर मच गया। तो ये पहले क्यों नहीं बोले बिलावल साहब? भाई ये मिसाक जमहूरियत जो है वो किस दिन काम आएगा? को गिदड़ सिंगी है, किसी को जादू की छड़ी के तौर पर उसको छुपा रखा है कि जब कोई वक्त आएगा इस तरह का जबकि को करके युद्ध दरिया को दो हिस्सों में बांटना होगा तो उसको निकाला जाएगा। मिसाक जमहूरियत का ये तकाजा था कि जब आप ये मरहला वार की बात कर रहे थे आपको कोई ऐसी मीटिंग नजर आई कि जहां पर मैं कोई बोला ही नहीं, किसी सियासी जमात ने नहीं कहा कि की हो रहा है जो आज सारे कह रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं। अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि रियासत ये फैसला करे
کہ انہوں نے قومی مفاد کو ترجیح دینی ہے یا نون لیگ کے مفاد کو. تو یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہے, ان سے واپس پھرنا بہت مشکل ہے. ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری عدنان, آپ یہ بات, یہ جو اوریجنل تقریر تھی, اب ظاہر ہے ہم ساری تو ریپیٹ نہیں کر ہاں، سکتے. اس میں سے اس کچھ کی چیزیں ایک لائن جو ہے وہ قابل, یعنی وہ غور ہے. ٹھیک ہے. موصوف نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, یہ پی ٹی آئی کے کارکن کو, یعنی وہ جو درینہ جو واقعتاً مداح ہے, ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی, عاشق ہے بانی کا, یہ ان کو دھوکہ دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے آپ کو انہوں نے غلط راہ پہ چلایا ہے, بائیکاٹ مت کیجئے. مظفر آباد میں اور یہ جو مراحل آنے ہیں بھرپور حصہ لیجئے. دوسری طرف ریاست کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ وہ نہ کیجئے کہ میرا بھی اعتبار وہ اٹھ جائے. ہاں ہاں. اور تیسرا, ابھی شرجیل میمن صاحب نے جب جواب ہاں غزل کی ہے مریم بی بی کے مقابلے میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں. نہیں, بلاول صاحب نے کہا کہ میں پچھلے الیکشن کا ذکر کروں تو اس کہانی میں جانا نہیں وہ چاہتا. تو 1990 تک جا رہے تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس میں جانا نہیں چاہتا. پچھلے الیکشن سے ان کی مراد خالی وہ ایک 2024 والا الیکشن نہیں تھا, وہ کہ if I start the story from. اب سوال اٹھتا ہے, جب آپ یہ بات کہہ دیں گے تو پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اگر یہ واقعتاً شرجیل میمن صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب فارم 47 کی حکومت تو آپ نے بنایا کیوں؟ تو آپ ان کے ساتھ, اگر یہ واقعی دھاندلی سے آئے, 2 نمبری سے آئے, ان کے دیے ہوئے ووٹوں سے ہاں، آپ نے آئینی عہدے کیوں لیے؟ اور ان کو آپ صدر حکومت کیوں بنانے بنے؟ دی, انہوں نے آپ بنوائی گورنر نا. کیوں بنے؟ ہاں. صحیح ہے نا بات. تو بھیا میں جب پیپلز پارٹی کو جان کی امان پاتے ہوئے جتنا تھوڑا بہت سیکھا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ اگلا موڑ جدائی کا اسے آنا ہے, وہ تو آئے گا, اور وہ آ گیا ہے. ہیں؟ وہ اگلا موڑ جدائی کا, وہ تو آنا ہے, وہ آ گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے. نہیں سر, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, الیکشن کا ماحول ہے اس الیکشن کا ماحول. اب یار بات سنو نا میری, کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس بات پر حکومت ایگری کر جائے گی مسلم لیگ نون کہ کل جو 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے ہیں دوبارہ ہوں؟ دوبارہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. I can bet anything under the sun. دوبارہ تو نہیں. If you are not able to get it. ہاں, یہ کہہ دیں سو کہ آپ کے خیال میں کشمیر کا جو سچویشن ہے وہ پاکستان کے حالات کو یکسر بدل سکتی ہے؟ سر, یہ جو بندوبست بنا ہوا ہے, ہاں, حکومتی اس کو آج پہلا دھچکا لگا ہے. اچھا, یہ لگ گئے ہیں مسلم لیگ کے پیچھے, اس کو فارم 47 یاد دلا رہے ہیں, ٹھہر جاؤ نا. اور ادھر سے میرے پیارے بھائی, میں کیسے کہہ رہا ہوں, یہ جب بھونچال آ رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر اس کی وہ جو لرزشیں, وہ جو پہلے ہوتی ہیں, انہوں نے محسوس, درختوں سے پرندے اڑتے ہیں. وہ ایم کیو ایم بھی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ 4 مراحل میں اب احتجاجی تحریک آنی ہے, وہ ان کے پیچھے لگ گئے ہیں. ہیلو, سمجھ آ گئی نا؟ یہ آپس میں ہی لگ پڑے سارے. تو جب یہ آپس میں ہی لگ پڑیں گے تو پھر وہی ہوگا نا کہ جو ہوتا ہے, تو اللہ نہ کرے ایسا ہو. چلے آپ کی یعنی بہتر یہ ہے کہ بھائی صاحب ابھی بھی کسی نہ کسی طرح راستہ نکالیں, اور خدا کا واسطہ ہے, دوبارہ التجا کر رہا ہوں کہ لوگوں کا, میرے پیارے سیاستدانوں, میں نے ساری زندگی آپ کی لیے آپ پر توجہ دی ہے, بہت تانے سنے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ جمہوریت ہونی چاہیے. اپنا اعتماد, اپنا ساکھ, اپنا وقار بحال کیجئے, خدا کا واسطہ ہے. نہیں تو جمہوریت کا جس طرح قتل کشمیر میں ہوا, وہ پورے سسٹم کو لے ڈوبے گا. وہ کال نصرت جاوید کی. ایک بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. نو صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے پورا ہفتہ دہائی مچائی اور حکومت سے سوائے گلوں کے آپ نے کچھ نہیں کیا. حکومت نے آپ کے تمام گلے دھو دیے پیٹرول کی قیمت میں ایک بڑی کمی کرنے کے بعد. عطا شاہ دو آ گئے, میرے تربت کے بہت ہی عزیز شاعر تھے, ان کا ایک شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں.
धूप की तमाज़त है, हाँ हाँ हाँ? धूप की तमाज़त है। मोम के मकानों पर, और तुम भी ले आए साहिबान शीशे का। वाह, चलो कुछ कुछ तो भैया, अल्ट्रा वायलेट हो गए। मैं जिस तरह इधर बैठा हूँ, मैंने कल तुम्हारे आगे रो रहा था। मैंने कहा ये साहब जो ये खताब फरमा रहे हैं बाबुल मंदब, नहीं कमी की है पेट्रोल की कीमत में जी 1 रुपए जी, 1 रुपए। यूं फेंका है। 1 रुपए का सिक्का होता है आजकल, बहुत छोटा सा होता है, चुन्ना सा। कभी किसी फकीर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ही वो नहीं लेते सर, नहीं 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 नहीं, फकीर भी नहीं लेता। यार 1 रुपया और फकीर भी नहीं इससे देता। पहले कमी क्या की थी? 35 पैसे, वो तो होता ही नहीं सर। ठीक है। अब आज जो है इस वक्त कंसिडरेबल रिड्यूस हुई है, क्योंकि आपने हुर्मस वो सॉरी बाबुल मंदब जहाँ पे होस्टिस का हमला नहीं शुरू हुआ था, न जाने क्यों, शायद आंख लगी हो तेहरान से ये वो, आज वहां से 51 जहाज गुजरे हैं। ठीक है। आप नए हुर्मस से भी कुछ जहाज गुजरे हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान के लिए वक्फ है। तो सप्लाई तो आ रही है। नहीं, आप नए हुर्मस से कम है, लेकिन बाबुल हिंदब वाला जो रूट है, बाबुल मंदब वाला, हाँ जिसको केस तुम्हें पता है सऊदी हाँ, अरब इस्तेमाल सऊदी कर रहा है, तो टेक्निकली स्पीकिंग आज सिग्निफिकेंट रात को रिलीफ मिलनी चाहिए। आई एम सेइंग सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट से आपकी क्या मुराद है? Not less than 15 to 20 rupees. नहीं, how it is possible? If not possible, then stop रोजाना इंक्रीज करते रहो। अल्लाह का वास्ता नहीं, साहब ये देखें ना, हम मिस गाइड कर रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट का पेट्रोलियम वजारत का कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने प्लॉट पड़ा। ओगरा जो है वो किसकी ऑर्गेनाइजेशन है यार? ये जो 110 रुपए टैक्स इजाफी है, ये कहाँ जाता है? ये 80 रुपए की लेवी कौन लगाता है? ये इस तरह तो नहीं है कि ये दुकानदार के पास हम गए, हमने ले लिया। तो भाई आप जनरल टैक्स लगाओ ना, टैक्स हर चीज पे, तो 18% है। नॉर्मली यही है ना? यही है। आपने मुझे ये गिलास बेचा, 18% में लगाऊं तो 28, 29, 30 रुपए बनता है 1 लीटर पे। सही बात है ना? वो तो नहीं हो रहा ना। आप तो बाकायदा जगहगिरी कर रहे हैं, और ये सारा कुछ करने के बावजूद। उससे पहले लेकिन मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूँ। चलो पेट्रोल के हवाले से तो आप रियाया के मुंह पे यूं रुपया तो नहीं, पहले तो 35 पैसे भाड़ो चेन नहीं गया, ओ या सॉरी नोट नहीं गया, वो दिए 35 पैसे। नहीं, दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग यू लाइक खुदा का वास्ता है। तुम रियाया को नहीं पता है ये कीड़े मकोड़े हैं, जब चाहे मसल दो, ये रवैया इनका। तुम कभी इनकी गुफ्तगू सुना करो ना। बादशाह तो नहीं है ना सर। है क्या बात कर रहे हो? और तुम्हारा वजीर आजम हुक्म करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लोगों के सवाल लो, समझाओ। वाह वी आर गोइंग योमिया, नहीं कि यू डोंट डू इट। आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, 7:15 में चलवा देते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? ये तो बड़े लाडले हैं, ना करो यार। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे और तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल जाती तौर पर रोजमर्रा के लिए, दफ्तर आने के लिए, घर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, ठीक है पेट्रोल की प्राइस हमें फौरन पिंच करती है, मुझे और तुम्हें फौरन डायरेक्टली, ज्यादातर हमारी जाती हवाले से, क्योंकि एक तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि वी शुड बी मोबाइल, दूसरा ये कि जी बच्चों को लाना ले जाना छोड़ना वगैरह 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 करता है। लेकिन खल के खुदा के लिए जो प्राइस इंपॉर्टेंट है मेरे बाबू, वो है डीजल। तो बढ़ा दिया, तो वो मुसलसल बढ़ाई जा रहे हैं। मुसलसल बढ़ाया। डीजल की वजह से आपका गजाई अजनास की जो इनपुट है बाबू, वो महंगी से महंगी तर होती जा रही है। सर आलू प्याज टमाटर वो 50 रुपए फी किलो एक हफ्ते में बढ़ा दिया गया है। अल्लाह आपका क्यों? डीजल वो सच्चे है ना कि जिस लोडर ने लेके आना है प्रोडक्शन वाली जगह से मंडियों तक, उसने डीजल लगाना है ना। अल्लाह तुम्हारा भला का। अब देखो ना, फिर वो जो आता है एक और जो बात जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं जावेद साहब, ये जो सड़कों पे टोल टैक्स लिया जाता है, जी वो हजारों रुपए है। वो जिड़ी बस मतलब एक सवारी का किराया ना जावेद साहब, उतना ही वो एक उसका काट लेते हैं। एक अगर कार जा रही होती है, वो जो लोडर ट्रक मजदा आ रहा होता है जिसमें टमाटर प्याज सब्जी आलू आ रहा है, वो अब हजारों रुपए में है।
ایک طرف تو عالم یہ ہے کہ آپ نے یہ جگہ ٹیکس ہر نوعیت کا وصول کیے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے نا، یہ جو آئی پی پیز، یعنی کمال کی بات ہے، آپ پیدا نہ بھی کرو تو کیپیسٹی پیمنٹ دینی آپ نے. اس کے بارے میں آئی ایم ایف نے جو ہے اس نے لمٹ لگائی تھی. ہاں اس نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں 116 ارب روپے سے زیادہ 1600 ارب تو 1600 ارب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ طے بنتا ہے نا، 1600 ارب روپے تک آپ اس کو محدود رکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں بڑھے. نہیں کریں گے ٹھیک ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اس لمٹ کو جو آئی ایم ایف کی بنائی ہوئی تھی وہ تقریباً 400 ارب روپے کراس کر چکی ہے. اب یار تم بجلی کے بل بھی بڑھا رہے ہو، لیوی نام کا جگہ ٹیکس ٹیکس بھی لیے جا رہے ہو. ہاں تو یہ کہاں سے بڑھ گیا؟ یہ اس لیے بڑھتا ہے کہ تم جون میں فیصلہ کرتے ہو اور جولائی میں ہم کمینوں کو بتاتے ہو کہ یار اعلیٰ افسران کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کر دو. اور وہ ملینز میں ہے تو انہوں نے کی فرق پڑنا ہے جی. جس کی تنخواہ 4 ملین انہوں نے کر دی. ابھی چونکہ میں کنفرم نہیں کر پایا ہوں، جلدی سے خبر چل رہی تھی کہ سینٹ کی کمیٹی میں ہمارے ایک ریگولیٹر کے سربراہ صاحب نے اپنی تنخواہ خود ہی بڑھائی اور کیبنٹ کے اپروول سے پہلے، چونکہ میں نے اس خبر کو پیچھا نہیں کر پایا ہوں تو میں اس ریگولیٹر ادارے کا نام نہیں لے رہا، اس کے سربراہ کا نام نہیں لے رہا. اوکے، ان صاحب نے خود ہی اپنی تنخواہ بڑھائی، وہ بھی ملینز میں. اور وہ شخص جس پہ اس ملک کا آئین تہمت لگاتا ہے چیف ایگزیکٹو ہونے کے، اس کی منظوری کے بغیر وہ تنخواہ بھی وصول کر لی، یعنی وزیر اعظم پاکستان. وزیر اعظم کسی کام جو نہیں چھڑیا، وزیر نو کہنے پریس کانفرنس کرو، وہ نہیں کرتا. کیا مذاق بنا ایک ریگولیٹر کا سربراہ ہے، وہ اپنی تنخواہ خود ہی بڑھا لیتا ہے پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر. اور خود ہی وصول کر لے. تو شہباز شریف صاحب تو صرف نام کے وزیر اعظم ہیں. نہیں وہ یہ جی فیاض، یار اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو کیوں نہیں یار اور زیادہ عاجزی جتنے وہ نیچے نہیں دے، لوگ عوام کو دے نا سر، ہیں، عوام کو دیں، عوام کو دے رہے ہیں نا دھکے، اور کیا دیں. صرف دھکے. ہاں، اور باقی یہ کہ آج کل ان کا دیکھ نہیں رہے ہو، کوٹ سے زبردست ہونا. ہاں مطلب انہوں نے وہ چھوڑ دیا، وہ جو سفاری سا وہ زمانے گئے جب چلانگی پکھیاں یادگار ہے پاکستان نیچے بیٹھ کے مینار پاکستان کے اوہ لوڈ شیڈنگ بہت نہیں. یہاں بھی وہ کہا کرتے میں اپنے کپڑے بیچ کے عوام کی. اور بات نہیں، اب تو کپڑے بیچنے کی نہیں نا، اب تو یار دیکھو نا ہر دوسرے دن کسی نہ کسی آپ کو ملک جانا پڑتا ہے، تو یہ نہیں ہے نا کپڑے بیچ کہ یار پتا چلے کہ آپ نے وہ ایسے خدر یا شلوار کرتا پایا ہے اور استری بھی نہیں صحیح ہوا ہے، تو یہ تھوڑی ہے. تو وہ تو پراپر ٹائی شائی ہے وہ ادھر چلیں نا. اور لیٹر سے تو نہیں ویسے وہ یہ دیکھیں نا، وہ وہاں خادم اعلیٰ تھے، اب انہوں نے اپنے آپ کو خادم اعظم کا خطاب دیا. جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کھانے پہ بلایا صحافیوں کو، تو تمام صحافیوں نے کہا نہیں جی یہ اعزاز آپ نہ لیں. تو اس دن وہ سفاری سوٹ وہ جو تھا نا وہ پہنا ہوا تھا. جب ہم نے کہا بھی آپ خادم اعظم نہیں ہیں تو انہوں نے پھر پینٹ کوٹ پہن لیا. تو آپ ہیں ان کے. چل اللہ خیر کرے، خوش رہیں بھائی وہ بھی. اور آپ ویلکم بیک نصرت صاحب. بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے سٹوری سیلاب کی صورتحال والی. پچھلی دفعہ بھی بہت حد تک اگنور ہوا تو پھر یکدم میڈیا نے اس کو کور کرنا شروع کیا. اس وقت سال بھی پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے، خاص طور پہ اپر پنجاب اور ایون جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں تک سچویشن جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہمارے رپورٹر ہیں جو اب رپورٹ کریں گے کہ سیلاب کی صورتحال کیا ہے. سب سے پہلے مرید کے میں ہمارے ساتھ ہیں سجاد شیرازی صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے سیلابی صورتحال پہ، ذرا سن لیجیے. جی نصرت جوید صاحب، عدنان صاحب آپ کا شکریہ. میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مرید کے جو ہے یہ تقریباً پچھلے 5 روز تک مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری رہا. اس کے ساتھ ساتھ نالا ڈیک، نکی ڈیک اور مرید کے راجبہ سمیت ایک نالا بھیڑ ہے. یہ جو نالے ہیں ان میں پانی جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اوپر ہو گیا، جس وجہ سے یہ نالے جو ہیں مختلف جگہوں پہ ان کے جو بند ہیں وہ ٹوٹ گئے اور پانی مختلف علاقوں میں پھیل گیا. یہ والا پانی جو ہے جس کو ہم برساتی پانی کہہ سکتے ہیں، یہ پانی تحصیل مرید کے 26 دیہات کو اس نے جو ہے وہ
अपनी लपेट में लिया है और हर तरफ पानी पानी, ना सिर्फ रहायशी आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है बल्कि जितनी जो यहाँ पे फसलें थी वो सारी की सारी पानी में डूब चुकी हैं। और इंतजामिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 25,000 से ज़ायद एकड़ की फसल जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुकी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इलाका जो है मुरीदके का, ये बासमती चावल की, धान की फसल का एक कीमती इलाका है जहाँ पर बासमती चावल पैदा होता है। और ये 25,000 से ज़ायद एकड़ का जो रकबा है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। 26 से ज़ायद देहात जो है वो पानी के घेरे में हैं। हज़ारों अफराद जो हैं वो पानी में फंसे हुए हैं और इनका ज़मीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। रेस्क्यू 1122 की जो कश्तियाँ हैं वो, और उसके साथ साथ अल खिदमत फाउंडेशन और खिदमत फाउंडेशन की जो तंजीमें हैं उनकी कश्तियाँ जो हैं वो भी पानी में फंसे अफराद को है रेस्क्यू करके जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो ये गांव है नूरपुर, और ये मुरीद के नालवर रोड पर ये गांव मौजूद है। ये पानी दरियाए रावी का नहीं है, ये बल्कि आज़ाद मकबूजा कश्मीर से निकलने वाले नाला डेक जो सियालकोट से पाकिस्तान में दाखिल होता है, ये उससे मुतल्लिका जो बरसाती नाले हैं ये उनका पानी है, और जो कई साल बाद जो है ये पहली दफ़ा इन इलाकों में शामिल हुआ है। ये बड़ी तफसील से उन्होंने बताया कि ये दरिया का पानी नहीं, ये नाले का पानी है और उसकी वजह से मेरे पास मैं कहता हूँ और भी है वजीराबाद से भी। वैसे ये इलाका आपके बहुत प्यारे अजीज दोस्त, आपके बुजुर्ग, आपके राजपूत भाई राना तनवीर हुसैन साहब का अच्छा, है, जो वजीर बराए सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी, उनका अपना गांव भी तमाम का तमाम पानी में डूबा हुआ है। डूबा होगा। यानी अकील अहमद लोधी साहब हैं हमारे रिपोर्टर, वजीराबाद से ये हमें रिपोर्ट करेंगे सैलाबी सूरत हाल वहाँ पे क्या है। जी बिल्कुल, मैं वजीराबाद में नाला पलखू के मुकाम पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ से गैर मामूली पानी का बहाव गुजर रहा है। वजीराबाद में दरिया चनाब और नाला पलखू ये दोनों एक मुतवाज़ी लाइन में मकबूजा कश्मीर से आते हैं, जो यहाँ वजीराबाद में दाखिल होकर हर साल बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। वजीराबाद में अभी हालिया मानसून बारिशों की वजह से नाला पलखू में पानी के गैर मामूली बहाव की वजह से बड़े पैमाने पर ज़राई रकबे मुतासर हुए हैं। लोगों की फसलें, जिनमें धान की फसलें थी, चारे की फसलें थी, सब्ज़ी की फसलें थी, बुरी तरह मुतासर हुई हैं। जबकि बेशतर आबादियों में भी पानी दाखिल हुआ है, ताहम अभी तक हालात कंट्रोल में हैं। वजीराबाद में नाला पलखू में हर साल और इसके अलावा दरिया चनाब में आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से शहर में भी पानी दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताता चलूँ कि वजीराबाद में से गुजरने वाले नाला पलखू में पानी की गुंजाइश 5,000 क्यूसेक से ज़ायद है, जबकि अभी हालिया मानसून बारिशों की वजह से यहाँ 6,000 क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजरा, जो करीबी फसलों को बहा कर ले गया। वजीराबाद में नाला पलखू से मुतासर होने वाले देहातों में टालीवाला, लवेरीवाला, बराम, पातोकी, राना ये गांव आते हैं, जबकि ये नाला पलखू यहाँ से जीटी रोड क्रॉस करने के बाद आगे कोट जाफर के करीब दरिया चनाब में जा गिरता है। दूसरी जानब दरिया चनाब भी मकबूजा कश्मीर से आता है, जो इससे कबल हेड मराला और उसके बाद हेड हानकी, जिसे अब हानकी बराज में बदल दिया गया है, से गुजरते हुए आगे चिनोड़ की तरफ निकल जाता है। वजीराबाद में हर साल दरिया चनाब और नाला पलखू के आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही आती है। गुज़िश्ता साल भी यहाँ सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो सूरत हाल थी, तो यहाँ नाला पलखू से 6,000 क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजरा, जिसके बाद मुकामी लोग अभी संभल नहीं पाए कि आगे से मानसून की बारिशों के बाद नए एक बार फिर सैलाबी हालात पैदा होने शुरू हो गए हैं। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आइंदा दिनों में होने वाली बारिशों के बाद क्या सूरत हाल बनती है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जी, ये अकील लोधी साहब ने आखिरी बात की, एक तो इन दोनों का बहुत शुक्रिया, अकील लोधी साहब का भी और सज्जाद शिराजी साहब का भी। बहुत एक तो बारिशी इलाका भी है और कैफियत भी खराब है, उसको जाके शॉर्ट नोटिस पे रिपोर्ट तैयार करना। दोनों बातें इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन एक जरा हमारे भाइयों ने ज्यादती की है। वो ये की है कि ये हमें इस बात को इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, देखो कि पिछले बरस भी सैलाब आया था और इस बरस भी जिस तरह मानसून बिल्ड हो रहा था तो एक्सपेक्टेड था कि ये सब कुछ होना, आगे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सवाल उठता है कि सुथरा पंजाब वाला
जो हुकूमत है उन्होंने ये जो नाले थे इनकी को भल सफाई वगैरह, क्योंकि इन नालों को खुश्की के दिनों में क्या होता है, लोग यानी ये कूड़ेदान बना महकमा आवासी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट। वो क्या करते हैं कि उसमें प्लास्टिक और ये और वो फलान वहाँ। तो सवाल उठता है कि अगर उसमें कैपेसिटी से भी ज़्यादा होगा तो इसके अंदर पहले से जो गंद मौजूद होगा वो भी बाकी इलाके में फैल जाएगा ना भाई, इरिगेशन तो जिससे वैसे फिर बीमारियां बाल और सफाई ये वगैरह इरिगेशन के जिम्मे आता है तो ना। वो हाँ। जो है वो भी हम दरख्वास्त करेंगे कि आइंदा हमारे साथियों का बहुत शुक्रिया कि ये मालूम करें कि जी क्या ये जैसे नाले हैं इनकी बर वक्त सफाई हुई या नहीं। या देखा ना, सिचुएशन तो ये बता रही है ना कि नहीं हुई ना, यही वजह है कि अगर 5000 उसकी कैपेसिटी थी तो कहीं ना कहीं 6000 एडजस्ट करना था उसने, 20% का मार्जिन तो होता ही है, तो वो नहीं हुआ। फिर एक पूरा आपने सैलाब के पूरे आपने फेस किया पिछले साल 25 में, तो अब तो आपकी तैयारी होनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा नवंबर से शुरू कीजिए और आप जून तक आइए, आपके पास 8 महीने बचते हैं। तो 8 महीने में क्या आपने इन नालों को और दरियाओं के बंधों को क्या मजबूत किया? तो वो लग रहा है कि नहीं हो सका जिस स्पीड पे होना चाहिए था। अल्लाह हमें महफूज रखे, क्योंकि हम एक खौफनाक सैलाब आजाद कश्मीर के इलेक्शन आ गए, एक खौफनाक सैलाब से अभी गुजरे हैं लोग, उससे रिकवर नहीं हो पाए। अल्लाह हमें महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।